اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اب ہم کم کیسے کریں، سولوشن کیا ہو سکتے ہیں، تو سولوشن یہ ہے کہ جو نئے آلٹرنیٹ سورسز ہیں، جو جدید طریقے ہیں، ان کو لے کر آیا جائے. اور جیسے ہمیں چائنا نے بہت سے ایسے نئے طریقے انٹروڈیوس کروائے ہیں جن میں ہم لوگ پرانے طریقوں کو ختم کر کے نئے طریقوں کے ذریعے انرجی حاصل کر سکتے ہیں. تو لیکن اس سال جو ہے وہ فصل 50% کم ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی آئی ہیں مینگو پہ. کیونکہ ابھی میرے خیال میں چائنا میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک جو لاجسٹک ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، آج ہم کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. دیکھیے، کروٹ کی وجہ سے تو ابھی ایک اضافی بوجھ جو ہم پہ پڑ سکتا تھا وہ نہیں پڑ رہا. ناظرین محترم، السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. ڈان نیوز کے مطابق پاکستانی حکومت یکم جولائی سے گھریلو بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافہ کرے گی تاکہ مہنگی ایندھن کی درآمد سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جائے. حالیہ مہینوں میں پاکستان میں LNG کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا ہے. موجودہ عالمی توانائی کی قلت کی صورتحال میں پاکستان میں توانائی کے بحران کا حل کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ماہرین سے سن دیں گے. اس وقت پاکستان میں بجلی کی قومی پیداواری صلاحیت تقریباً 21 گیگا واٹ ہے، جبکہ مجموعی طلب تقریباً 28 گیگا واٹ ہے، جس میں 25% فرق آ رہا ہے. بجلی کی بچت کے لیے پاکستان نے جون کے اوائل میں اعلان کیا کہ پبلک سیکٹر میں 6 دن کا ورکنگ سسٹم 5 دن کیا جائے گا. اسلام آباد، کراچی اور پنجاب کے کئی شہروں میں رات 10 بجے کے بعد شادیوں پر پابندی ہے. کاروبار رات 9 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم موسم میں کچھ علاقوں میں روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ بجلی کی بندش معمول ہے. عالمی توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے گزشتہ 1 سال سے پاکستان میں بھی توانائی کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے. تو موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ ابھی اگر دیکھیں تو پاکستان میں پھر سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے جو بھی انرجی جنریشن پلانٹس ہیں، فار ایگزامپل اگر ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس ہیں تو وہ ان میں بھی بجلی بنانے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس ہیں وہ پراپرلی جنریٹ نہیں کر پا رہے انرجی. اس کے علاوہ جو ہمارے دریاؤں میں پانی کی سطح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کچھ عناصر ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ خود بجلی بنانے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کئی دہائیوں سے ہم لوگ غیر جو دوسرے ممالک ہیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم بہت بڑی تعداد میں ان ممالک سے انرجی کے لیے آئل امپورٹ کرتے ہیں، گیس امپورٹ کرتے ہیں. لیکن آج کل جو LNG ہے، جو نیچرل گیس ہے، اس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 3 دفعہ پاکستان یہ ڈیل بنانے میں ناکام رہا ہے کیونکہ اوور آل دنیا میں مہنگائی کا ایک لہر چل پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو لوڈ شیڈنگ سے لے کے جو کاروبار ہیں وہ بند ہیں، روزمرہ زندگی سے لے کے جو ہماری انڈسٹریل لیول ہے اس تک ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. ہم کیسے غیر ملکی قدرتی گیس پر انحصار کے بجائے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اب ہم کم کیسے کریں، سولوشن کیا ہو سکتے ہیں، تو سولوشن یہ ہے کہ جو نئے آلٹرنیٹ سورسز ہیں، جو جدید طریقے ہیں، ان کو لے کر آیا جائے. اور جیسے ہمیں چائنا نے بہت سے ایسے نئے طریقے انٹروڈیوس کروائے ہیں جن میں ہم لوگ پرانے طریقوں کو ختم کر کے نئے طریقوں کے ذریعے انرجی حاصل کر سکتے ہیں.
بہت ساری کمپنیز سی پیک کے انڈر پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور بہت سے انرجی پروجیکٹس لگائے گئے ہیں پاکستان کے کئی شہروں میں، تھر کے علاقے میں، سندھ میں، فیصل آباد میں، کئی جگہوں پر رشا کئی زون میں انرجی پاور پلانٹس لگائے جا رہے ہیں تاکہ اس چیز کو کم از کم قیمتوں کو کم کیا جا سکے۔ الٹرنیٹو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ وزارت توانائی کی طرف سے جاری کردہ ایک حالیہ فہرست سے ظاہر ہوتا ہے AEDB سرٹیفکیشن ریگولیشنز 2021 کے تحت تصدیق شدہ انسٹالرز کے زمرہ C1 500 کلو واٹ تک یا اس سے زیادہ میں چین کی فوٹو وولٹک فراہم کرنے والی زونرجی تیانجن کمپنی لمیٹڈ 84 کمپنیوں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ یہ کمپنی تقسیم شدہ آپٹیکل سٹوریج کے 30% سے زیادہ مارکیٹ شیئر کی مالک ہے۔ پاکستان میں بجلی کی کمی کی وجہ سے رہائشی علاقوں میں بجلی کی قیمتیں بلند رہتی ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر صنعتی اور تجارتی سمیت رہائشی علاقوں میں گھروں کی چھتوں پر سولر بجلی گھروں کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس وقت پہلے مرحلے میں زونرجی کے کانٹریکٹ کے زیر سایہ 100 میگا واٹ کے 9 وسیع پروجیکٹس میں سے 100 میگا واٹ کے 3 پروجیکٹس کو گرڈ کے ساتھ بجلی کی پیداواری غرض سے جوڑا جا چکا ہے۔ یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت توانائی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ چونکہ یہ 2016 میں گرڈ کے ساتھ جوڑا گیا تھا تو اس لیے اب اس سے ہر سال تقریباً 500 ملین کلو واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جو 2 لاکھ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتی ہے، جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 17.7 ملین ٹن تک کی کمی واقع ہوئی ہے۔ جیسا کہ حکومت پاکستان سستی توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش کے ذریعے بجلی کے نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے، چینی کمپنیاں پاکستان میں آن گرڈ، آف گرڈ اور ہائبرڈ توانائی کے لیے انسٹالرز اور سروس فراہم کنندگان کے طور پر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے فوٹو وولٹک پلانٹس میں کل بیرونی سرمایہ کاری $144 ملین ہے، جس میں پاکستان میں چینی سرمایہ کاری $125 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ شہروں میں اسپیشلی لوگ سولر پینلز استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ چائنیز کمپنیز کو جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجیز ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ اب عام لوگ بھی جو ہیں وہ سولر پینلز لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ تھا اس میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، لیکن سلولی یہ ٹیکنیک سولر انرجی کی انٹروڈیوس کروائی جا چکی۔ پاکستان کے مجموعی طور پر فوٹو وولٹک اور قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں، اگرچہ مختلف جگہوں میں مخصوص روشنی کے اوقات کار کی تعداد مختلف ہے، لیکن مجموعی طور پر روشنی کی حالت کافی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ پاور گرڈ کی حالت بھی کافی بہتر ہے۔ توانائی نہ ہونے کے باوجود بجلی کی قلت نہیں ہوتی، اگرچہ پاور گرڈ غیر مستحکم ہے لیکن مجموعی طور پر حالت اچھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زمینی پاور پلانٹس تیار کرنے کے لیے پاکستان اپنی پالیسی کو درست کر لے اور صحیح معنوں میں سمجھ جائے کہ اسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مثبت کردار کو پورا کرنا ضروری ہے۔ در حقیقت کچھ پالیسیوں پر دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو کافی بہتر طریقے سے سمجھا ہے۔ گزشتہ مشق کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے زمینی پاور پلانٹس کو تیزی سے بہتر کرنے کا ایک اچھا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستانی آم، جسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کی بین الاقوامی منڈی میں مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی آموں کی سالانہ برآمدات 1,50,000 میٹرک ٹن ہے، جس سے ملک کو سالانہ 90 سے 100 ملین امریکی ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ پاکستانی آم نے چینی مارکیٹ میں بھی قدم جمائے ہیں۔ اس وقت آم کی برآمد کا موسم ہے۔ اس سال آم کے برآمد کنندگان کو کن چیلنجوں اور مواقع کا سامنا ہے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آم پاکستان کی ان چند برآمدی اشیاء میں سے ایک ہے جو اچھا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، تاہم اس سال مختلف عوامل کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو لیکن اس سال جو ہے وہ فصل 50% کم ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی آئی ہیں مینگو پہ، اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ فصل ڈسٹرب ہوئی ہے اور آم کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔
सर आम की पैदावार इस साल जो हुई है 40 से 50% हुई है, कहीं कहीं तो 20% भी हुई है आम की पैदावार। एक तो हमारे पास सिंध में पानी कम थे, दूसरा मौसम सही नहीं था। ग्लोबल वार्मिंग चीन और पाकिस्तान दोनों के किसानों को दरपेश एक मुश्तरका मसला है। चीनी साइंसदानों ने इस मसले से निपटने के लिए कुछ नए नताइज हासिल किए हैं और वो आम के पौधे लगाने के शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तानी दोस्तों के साथ ग्रीन हाउस की तामीर में ताउन करने पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बंजर और नीम खुश्क इलाके में वाक़या योंगलिंग में पानी के वसाइल की तकसीम पाकिस्तान के बराबर है। हमारी जदीद सहूलत पाकिस्तान में शदीद मौसम की वजह से आम की पैदावार में कमी को मुनज़्ज़म तरीके से बेहतर बना सकती है। अगर हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ ताउन करते हैं तो हम ज़रूरी सहूलियात और मिट्टी के मयार को बेहतर बनाने से शुरू करेंगे। हमारा मरबूत पानी और खाद कंट्रोल सिस्टम तकरीबन 60 से 70% पानी और खाद को बचा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंतहाई सख्त मौसम मुस्तकबिल में ज़्यादा मुतवातिर आने का इम्कान है, लिहाजा एक आम सी पनाहगाह भी फसल की नशोनुमा के लिए बैरूनी माहौल को बहुत बेहतर बना सकती है। सहूलियात की सर्विस की मियाद आमतौर पर तकमील के बाद 10 से 15 साल से ज़्यादा होती है, जो कि बहुत सस्ती है। दूसरा ये कि मिट्टी की नामियाती मादे में इजाफा भी एक ज़रूरी इक़दाम है, क्योंकि शदीद मौसम ऊपर की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पैदावार में कमी के अलावा मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के तरीकों की कमी पाकिस्तान में आम की बरामद की तरक्की में बड़ी रुकावट है। मुझे 27 साल हो गए इस फील्ड में और पेरिशेबल को डील कर रहा हूँ, 27 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यकीनन ये एक अच्छा बिजनेस है, मगर ज़रा सेंसिटिव है क्योंकि पेरिशेबल है और पेरिशेबल आइटम को उसको कंट्रोल करना और मैनेज करना अभी डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। ये खाद का साइंसी तरीके से इस्तेमाल पौधों की सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ खराब होने के मसले को भी खत्म कर सकता है। नक्लो हमल और काश्तकारी कुदरती तौर पर जुड़े हुए हैं। कीमियाई खादों का ज़्यादा इस्तेमाल भी फलों को ज़ख़ीरा करने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और आसानी से सड़ने का सबब बन सकता है। मैं तजवीज़ करती हूँ कि शिपिंग से पहले कोई हार्मोनल इलाज ना करें। बचाव के लिए भिगोने जैसे तरीके शायद सबसे मुनासिब तरीका ना हो। सर ये जो पेड़ों में गूंद निकलता है या पेड़ जो ज़्यादातर नौजवान कमज़ोर होता है, इसमें हम जो सरकारी भान लगाते हैं ना, जैसे कि DAP है 15-15 है, 15-15 जरखेज है या 17-17 जरखेज देते हैं या कोई 23-23 देता है। ये इन भान को कम किया जाए। हमारा जो देसी खाद है वो लगानी चाहिए, जो पेड़ के हिसाब से हम तो कहीं 6-6 मन भी देते हैं, 4-4 मन भी देते हैं। जो पेड़ ज़्यादा कमज़ोर हैं फिर उस हिसाब से ये 2 फिर पेड़ को छोड़ के जो उसकी जो जड़ है उसको साइड में से आप लगाओ। मोहम्मद खोसो के ख्याल की गूंज वांग जियान ने सुनाई, जो नामियाती काश्तकारी का भरपूर तजर्बा रखते हैं। नामियाती काश्तकारी के तरीके जैसा कि मुखमर शुदा खेती बाड़ी की खाद और खेत में भूसे को वापस करना फ़रोग़ देने के लायक हैं, जो मकामी खादों की ज़्यादा कीमत और किल्लत का मुअस्सर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर कीमियाई खादें मिट्टी के लिए बहुत तबाहकुन हैं, लेकिन तिनके, शाखें और फंगस की छड़ियाँ बेहतरीन नामियाती मादा हैं, जिन्हें बुनियादी तौर पर ज़रखेज़ी को बेहतर बनाने के लिए मिट्टी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चौथा साल है कि हमारे बेस ने आम लगाए हैं। 10 से ज़्यादा इकसाम की जांच की गई है। इनमें से बिलतरतीब गुईफाई मंग, जिनख्वांग मंग और दाची मंग के नाम से 3 इकसाम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। वो स्टोरेज और लंबी दूरी की नकलो खमल के खिलाफ अच्छी कुव्वत मज़ाहमत रखती हैं। इनका जायका नफीस और ज़्यादा खुशबूदार है। जनवरी से सितंबर 2021 तक पाकिस्तान ने चीन को 37.4 टन ताज़ा और खुश्क आम बरामद किए, जो 2020 के इसी अरसे में 3.6 टन के मुकाबले से 10 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद ये अब भी चीन की कुल दरामदात का 0.36% से भी कम है। इसी अरसे के दौरान चीन ने कुल 10,500 टन आम बरामद किए। पाकिस्तानी आमों पर चीनी मंडी में दाखिले पर पाबंदी का बुनियादी उनसर नकलो हमल के मसाइल हैं। चाइना में करता हूँ, मगर उस क्वांटिटी में नहीं करता जिस क्वांटिटी में मुझे भी करना चाहिए या फिर पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में चाइना में एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे टेस्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है और एक जो लॉजिस्टिक है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, मगर फिल वक्त हमें करना पड़ रहा है इसके जो
दूसरी साइड है, उसके लिए जो है बाई एयर ही मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन है। और वो आजकल चूँकि फ्रेट इतने ज़्यादा हैं, और लाइक अगर 2 साल पहले बात करें तो अगर वो 150 रुपया था तो अभी 700 रुपीज़ पर किलो है। तो ये इतना ज़्यादा फ्रेट बढ़ गया है कि जब हम इसको बाई एयर चाइना भेजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा बन जाती है कि एक नई आइटम के लिए लोग जो हैं इतना ज़्यादा इसको वो इतना लेना नहीं चाहेंगे। जैसे अभी सी पैक जैसे कंप्लीट होगा और हमें लॉजिस्टिक की सहूलत मिल जाएगी तो हम जो इसका पाकिस्तान के साथ वाला जो चाइना का पार्ट है वहाँ पे हम इसकी ट्रकिंग और ट्रेन और उस पर भी कर सकते हैं। 720 मेगावाट की नस्बशुदा सलाहियत के साथ क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मशरकी पंजाब में दरियाई झेलम के बहाव पर तामीर किया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे हजारों लोगों की काविशें हैं। आइए उनकी मुतासिर कुन कहानियां सुनते हैं। क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पनबिजली की सरमायाकारी का पहला मंसूबा है, जिसकी सरमायाकारी और तकमील चाइना 3 गॉर्जेस कॉर्पोरेशन CTG ने की। इसे 29 जून 2022 से मुकम्मल कमर्शियल ऑपरेशन में डाल दिया गया। नाजरीन, आज हम क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पहुंच चुके हैं। जैसे कि आज देख रहे हैं कि आज धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन आई थिंक अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए आज बहुत अच्छा मौसम है, आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। अगर हम बात करें क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तो ये 720 मेगावाट कैपेसिटी का मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। इस तरफ हम राइट साइड पे अगर अपने नाज़रीन को दिखा सकें तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का रिजर्वॉयर एरिया है और ये अराउंड 27 किलोमीटर्स एक्सटेंड करता है। नाजरीन, अभी हम क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्पिलवे स्ट्रक्चर के सामने खड़े हुए हैं। अगर हम स्पिलवे स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास 3 शूट एरियाज़ हैं और 3 शूट एरियाज़ के पीछे हमारे पास 6 गेट्स लगे हुए हैं। इस वक्त आपको पानी इधर से मतलब फ़्लो करते हुए नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि अभी जो पानी का फ़्लो है वो सारा जो है वो यूनिट्स की तरफ से सादा ज़बान में टरबाइंस जो हैं वो टरबाइंस की तरफ से फ़्लो हो रहा है। अगर हम अपने बिल्कुल सामने देखें तो करोट ब्रिज आपको दिखाई देगा जो कि 72 मीटर्स या 75 मीटर्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन 70 प्लस मीटर्स हाइट पे है और वो रिवर झेलम के ऊपर वाक़ है और ये भी क्रोड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी ने बनाया है। रिजर्वायर एरिया और स्पिलवे से निकलकर हम कंट्रोल रूम और पावर हाउस पहुंचे। अब कंट्रोल रूम का अमला बिजली की पैदावार को मजबूत कर रहा है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी मेन स्क्रीन है कंट्रोल रूम की और यहाँ पर हम इस वक्त पूरी सिंगल लाइन डायग्राम जो है हमारी वो शो हो रही है प्रोजेक्ट की। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यूनिट 1, 2, 3, 4 क्रोड पावर प्लांट में 180 मेगावाट के 4 यूनिट्स हैं। चारों यूनिट्स की आपने यहाँ पर 1G, 2G, 3G एंड 4G आपको सारों के साथ लेबलिंग हुई है। जी, तो इस टाइम पे हम क्रोड पावर कंपनी क्रोड पावर प्रोजेक्ट के पावर हाउस में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पर 4 जनरेटिंग यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। चारों यूनिट्स की तरतीब में लगे हुए हैं और हर यूनिट के सामने उसका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। उसको उसके जो इस टाइम पे जनरेटर वोल्टेजेस क्या चल रहे हैं, जनरेटर कितनी आउटपुट दे रहा है, हर चीज़ का उधर जो है स्क्रीन के ऊपर हमें वहाँ पर सामने नज़र आ रहा होता है। क्रोड प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद अप्रैल 2015 में रखा गया। गुज़श्ता 7 वर्षों में शराकतदारों ने बहुत सी मुश्किलात पर मुश्तरका तौर पर काबू पाते हुए सिलसिलावार अहम कामयाबियां हासिल की, जैसे कि फाइनेंशियल क्लोज, दरिया की बंदिश, पावर हाउस केपिंग और फर्स्ट रूटर बुलंद करना वगैरह। 我觉得受到最大感动的就是中巴友谊，因
जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो चीन पाकिस्तान की दोस्ती थी। ये मंसूबा चीनी और पाकिस्तानी दोनों अवाम की बाहमी मेहनत से तकमील को पहुंचा। मंसूबे की तामीर के उरूज के वक्त 4500 मकामी कारकुन काम कर रहे थे। हमने मिलकर काम किया और मसाइल पर तबादला ख्याल करते रहे। अगरचे कोविड जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने इसे बिजली के मकामी खरीदार के मुतालबे से तकरीबन 50 दिन पहले मुकम्मल कर लिया। क्रोट प्रोजेक्ट ने तामीर के दौरान सीटीजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम और मुकामी कम्युनिटीज के लिए 20 से ज्यादा अवामी बहबूद के प्रोग्रामों के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान BMP के निफाज के जरिए अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR फाल तौर पर निभाई है। इसके अलावा इससे मुकामी इलाके के लिए सालाना बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलाजमत के 4500 से ज्यादा मौके भी पैदा होंगे। 卡的项目从开工到现在的话，大概有7年的时间。这个每一年每一天。 इस मंसूबे को शुरू हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और इस तमाम अरसे के दौरान हर रोज पेशरफ्त होती रही है। ये चीनी और पाकिस्तानी अवाम की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। अब जैसा कि प्रोजेक्ट COD यानी कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख को पहुंच गया है, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। हमने पाकिस्तान के कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक तरीकाकार वज़ा किए, जिनमें माहौल, पानी, हवा, शोर वगैरह के मुतलका इंतजामात शामिल हैं। कुछ समाजी प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया, जैसा कि स्कूल, सेहत की सहूलियात और सड़कों की तामीर। क्रोट प्रोजेक्ट से सालाना औसतन 3.2 बिलियन किलोवाट फी घंटा बिजली पैदा होने की तवक्को है, जिससे 5 मिलियन मुकामी आबादी की बिजली की तलब पूरी हो सकेगी। पाकिस्तान में तवानाई और समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के साथ साथ क्रोट प्रोजेक्ट मयारी कोयले की तकरीबन 1.4 मिलियन टन खपत बचाएगा और तकरीबन 3.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करके कार्बन न्यूट्रलिटी के आलमी हदफ के हुसूल में भी अपना किरदार अदा करेगा। देखिए, क्रोट की वजह से तो अभी एक इजाफी बोझ जो हम पे पड़ सकता था वो नहीं पड़ रहा। कल रात को जब मैंने देखा तो गालिबन 800 साढ़े 800 मेगावाट बिजली क्रोट बना रहा था, जिसका मतलब है कि कम से कम 1 घंटे की लोड शेडिंग कम जो है वो क्रोट की वजह से हो रही है। लगभग 800 से 1000 मेगावाट के करीब 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। तो हमने बहुत कोशिश की कि दीगर जो हमारे बिजली से चलने वाले, जो पानी से चलने वाले बिजली के कारखाने हैं उनको चलाया जा सके, मगर अभी डैम्स में इतना पानी नहीं था कि उनको चलाया जा सकता। तो क्रोट का जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। CPEC मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन CPEC का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि CPEC क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ऑरेंज लाइन चेन ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माजेब, मैं चाइना में रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुँचाएंगे। अगर ये आपके लिए नहीं है तो इनमें से किसी प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं। हमें CPEC के साथ अपना ज़ाती तजुर्बा बताएं, क्योंकि आपकी राय अहम है। अपने तजुर्बे को शेयर और हैशटैग करें #MeAndCPEC। हमारे #MeAndCPEC वीडियो और तस्वीरी मुकाबले में शिरकत कीजिए। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज।